Hello students, today we will start chapter 3 from compound interest. With formula, by using formula का use करके. Chapter 3rd of class 9th class का बेटा from Salina Publications. अब compound interest का formula amount principal 1 plus rate upon 100 की power t. This is the formula for amount. P means principal, AR means rate, 100, T means time. Up, what one condition is that if they have asked per annum है तो time years में होना चाहिए और rate per annum में. One more thing, if compounded semi-annually or we can say half yearly, semi-annually or half yearly, at that time जो year में है उसको 2 से मल्टीप्लाई एंड रेट बिकम्स हाफ और परसेंट यहां पे इसके साथ हाफ ईयर्स आ जाएंगे एंड रेट में हाफ परसेंट सेमी एनुअली या हाफ ईयरली. अब व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टर मींस 1/4 ऑफ अ ईयर. एट दैट टाइम जो ईयर में है टाइम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. कंडीशन इज दैट टाइम मस्ट बी इन ईयर. मंथ में गिवन है तो 12 से डिवाइड कर लेंगे. डेज में गिवन है तो 365. वो गिवन होगा कि लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है और यहां पे क्वार्टर्स आ जाएगा. सेम रेट जो पर एनम में है रेट उसको 4 से डिवाइड कर देंगे और परसेंट क्वार्टरली हो जाएगा. अमाउंट का फॉर्मूला A इज इक्वल टू अमाउंट का, नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट P 1 plus R upon 100 की पावर T. Now one more formula when we have to find the compound interest. Amount में से principal minus कर दो, we get the compound interest. ये formulas हैं बच्चे. Now we will start the exercise. This is so easy. कुछ सामने बेटा different formulas होंगे जो जैसे जैसे आएगा मैं वैसे वैसे explain करूँ. Here first sum, find the amount we have to find and the compound interest also we have to find. On rupee 12,000 principal is given rupee 12,000 in 3 years. Time is 3 years. 5% interest being compounded annually. Rate of interest is 5% annually per annum. P dot A भी डाल सकते हैं. We have to find the amount. First of all, amount का formula P 1 plus R over 100 की power T. Amount we have to find. Principal is rupee 12,000. यहाँ पे 12,000 आ जाएगा. 1 plus rate 5 upon 100 whole की power time is 3. क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है? कंपाउंडेड एनुअली. क्या लिखा हुआ है? कंपाउंडेड एनुअली. नाउ 12,000 एज लाइक, इसको बेटा कट किया. 20 इज द एलसीएम. 20 plus 1 होल की पावर 3. अमाउंट एज लाइक 12,000. 21 upon 20 होल की पावर 3. 12,000 into पावर 3 है 3 टाइम. 21 upon 20 into 21 upon 20. 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल एंड 0 से 0 कैंसल. 2
6 are 12. 2, 3. No more cutting is there. 21 cube. 21 square 441 into 21. 1, 4, 4, 2, 8, 8. 9261 into 3. 3 1s are 3, 6 3s are 18, 1 carry, 6 1 7, 9 3s are 27. 27783 upon 2. Change it into decimal. Rupees. 2 1s are 2, 3 2s are 6, 17 8 9 1.5. This is the amount. पहला आंसर हमारा आ गया. This is a rough work. Multiply किया बेटा rough work में. Now the compound interest. Amount minus principal. Amount is 13891. Principal is 12,000. Minus करो इसमें से. What we get? 0.5 था बेटा यहाँ पे. 1891.5. This is the answer. ये बेटा हमारा आंसर. Okay. Sorry. This is the first answer. Now we have to do the second sum. Second sum में बेटा new formulas use होगा. Calculate the amount. Amount we have to find. If rupee 15,000, principal is rupee 15,000, is lent at compound interest for 2 years. Time is 2 years. And the rate of successive year. Successive year का मतलब first year का interest different है, second year का different है. R1 मतलब first year के लिए 8% per annum. P dot A. R2 10%. Next year के लिए 10% है per annum. Here we have to find, calculate the amount. Compound interest नहीं बोला उन्होंने, only amount. तो यहाँ पे न्यू फॉर्मूला क्या है अमाउंट का? P1 प्लस R1 अपॉन 100 की पावर 1 की ईयर के लिए था 1 ईयर. हाँ मान लो 8% 2 ईयर के लिए होता, थर्ड ईयर के लिए 10% होता, तो पावर यहाँ 2 आ जाती. 1 प्लस R2 अपॉन 100 की पावर 1. अमाउंट वी हैव टू कैलकुलेट. प्रिंसिपल इज 15,000. 1 प्लस R1 इज 8 अपॉन 100 की पावर 1. 1 plus R2 is 10 upon 100 की power 1. 15,000 as like, इसको कट करो बेटा. 4 2s are 20. Sorry 25. 4 के टेबल पे. Here 0 से 0 cancel. यहाँ बचे 25 LCM. 25 प्लस, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है. 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 25. 25 into 1 25. 25 को किससे करें? 25 1 1 into 2 2. नेक्स्ट ब्रैकेट 10 इज एलसीएम. इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 के नीचे 1. 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 10 आ जाए 10. 10 1 जा 10. 10 को किससे करें? 1 10 आ जाए 1 1 into 1 1. पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो. 15,000 एज लाइक 25 plus 2 27 upon 25. 11 upon 10. कट दीज. 25 के टेबल में बेटा 25 6 150, साथ में 2 zeros. एक 0 इस 0 से कैंसिल. मल्टीप्लाई दीज 2. 3 27 को बेटा पहले 11 से. 11 7 77 7 कैरी. 22 7 29. उसके बाद इसको 6 से. 7 6 42 4 कैरी. 54 4 58 5 12 5 70. व्हाट वी गेट? रुपी 1782 और एक 0 यहाँ पे थी, दिस वन. तो अमाउंट आ गई हमारे पास. याद रखना बच्चे, फार्मूला रेट डिफरेंट है अलग अलग ईयर्स के लिए, तो पावर नेक्स्ट ब्रैकेट और कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई. दिस इज द सेकंड सम. नाउ थर्ड सम. कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट secured on rupees 6,000 in 3 years compounded yearly if the rate for the successive years are 5%, 8% and 10% respectively. Same to same as like second sum. Principal is rupees 6,000, but now they have asked calculate the compound interest, not only amount. पहले amount find करेंगे, उसके बाद compound interest. Principal rate R1 5% per annum, R2
8% per annum, and R3 is 10% per annum. Amount, principal 1 plus R over 1 upon 100 की power 1, 1 plus R2 upon 100 की power 1, 1 plus R3 upon 100 की power 1. Principal 6,000. 1 plus R1 is 5 upon 100 की power 1, 1 plus 8 upon 100 की power 1, 1 plus 10 upon 100 की power 1. जो भी बेटा कट होता है कट कर दो. यहाँ पे कटिंग क्यों करते हैं कि थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाए. 20 plus 1 21 आ जाएगा. यहाँ पे बच्चे 4 के टेबल में 2 25 25 plus 2 25 LCM 25 plus 2 27. Here 0 is cancelled. 10 plus 1 11 upon 10. Power 1 is optional. लिखो चाहे ना लिखो. 6,000 into 21 over 20 into 27 upon 25 into 11 upon 10. 2 zeros cancel. 5 के टेबल में 5 5s are 25, 12 5s are 60. कट हो सकता है बट कट मत करो क्योंकि नीचे 10 आ जाएगा, सीधा डेसिमल लग जाएगा. 12 into 21 कर लो. 12 ones are 12, 1 carry, 24 25. 27 into 11 कर लो. 11 sevens are 77 7, 22 7 29 upon 10. इन दोनों को बच्चे मल्टीप्लाई करो. डेसिमल 1 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा दो. यू गेट द अमाउंट. उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, जो इसका आंसर आ जाएगा बेटा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लेना. यू गेट द आंसर. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ fourth sum. What sum of money they have asked? They have asked to find the principal. What amount of money will amount to? Now amount is given rupee 5445, 5,445 in 2 years. Time is 2 years and rate of interest is 10% per annum. Amount का फॉर्मूला P, कुछ नहीं, सेम वही फॉर्मूला यूज करना है बेटा. R कंपाउंडेड एनुअली है ना, तो टाइम और रेट को चेंज नहीं करना. अमाउंट की जगह अमाउंट की वैल्यू 5445. प्रिंसिपल एज लाइक 1 प्लस रेट 10 अपॉन 100. टाइम इज 2. 0 से 0 कैंसल. 5445. प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड सेम. यहाँ पे बच्चे 10 इज द एलसीएम. 10 प्लस 1 11 आ जाएगा. 5445. प्रिंसिपल 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100. प्रिंसिपल इज 5445 into 100 अपॉन 121. ये कट हो रहा है. आई थिंक 11 पे कट होगा. 44 105. यस, 11 के टेबल में बेटा 11 4 is 44. 10 कैरी 104. 11 9 is 99. 555. अगेन 11 के टेबल फिर से कट हो रहा है. 11 4 is 44. 55. 11 5 is 55. 45 into 100 4500 is the principal. Rupees, this is the answer. Rupees is must. This is the question number 4. Now the fifth sum. Find the sum. फिर again we have to find the principal. Find the sum of money will the compound interest. Now compound interest is given है कितना? Rupees 768.75 for 2 years. Time is 2 years. Rate of interest 5% per annum. Amounts to rupee this. Starting में देखो बेटा क्या लिखा है. On what sum of money will the compound interest for 2 years at 5% per annum amount to rupee this? मतलब this is not amount, compound interest, क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा हुआ है. सबसे पहले बेटा अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल इस साइड आके माइनस हो जाता है.
amount principal, let principal be ₹x, प्रिंसिपल को x रुपी ले लो, x प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इज 768.75. ओके, अमाउंट का फॉर्मूला p, देखो ये एक अमाउंट का फॉर्मूला था, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट. अमाउंट का दूसरा फॉर्मूला ये है बच्चे, सेम x प्लस 768.75 के इक्वल. प्रिंसिपल इज x, 1 प्लस rate is 5 upon 100, time is 2 years. x plus 768.75 as like. कट करो बेटा इसको, x 20 plus 1 21 upon 20 whole की power 2 is x plus 768.75. Now on the next page, लेफ्ट हैंड साइड में जो था वही लिख रहा हूं बेटा मैं एक बार फिर से. पावर 2 is equal to x plus 768.75. x 21 का स्क्वायर 441 अपॉन 20 का स्क्वायर 400 is x plus 768.75. 441x 400 बेटा उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, दोनों के साथ. क्रॉस मल्टीप्लाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 से करेंगे तो वही सेम आ जाएगा. 400 को x से किया 400x, 400 को उसको ऐसे ही लिख दिया मैंने एक बार मल्टीप्लाई साइन में. नाउ x वाली टर्म्स एक साइड पे, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती है ना. 400x 400 इंटू 76875 अपॉन 100. डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे, डेसिमल हटा दिया, ये 2 जीरोस कैंसिल होगी. 441 minus 400 41x. 4 into 76875 and x is next step 4 into 76875 upon 41 upon 41. अब बच्चे इसको कैलकुलेट करो, डिवाइड करो इसको इससे. 76875 को 76875 को किससे डिवाइड करना है, 41 से. ये पूरा पूरा कट जाएगा 41 के टेबल में, कहाँ पे 1875 पे. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 5 20, 2 कैरी 28 to 30, 3 कैरी 32 3 35, 3 कैरी 7 रुपी 7500. देयरफॉर x को क्या लेट किया था, प्रिंसिपल इज x is rupees 7500 is the answer. Now next sum, question number 6. What principal amount to rupee 9856 in 2 years if the rate of interest for successive years, now again successive years, amount given है कितनी, rupee 9856, rate 1 10% per annum, rate 2 12% per annum. अमाउंट की जगह बेटा अमाउंट का फॉर्मूला 1 प्लस R1 अपॉन 100 की पावर 1 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 की पावर 1 इज 9856. क्योंकि सक्सेसिव के टाइम ये फॉर्मूला यूज होगा. प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड 1 प्लस रेट इज 10 अपॉन 100. 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है. R2 12 अपॉन 100 इज 9856. 0 से 0 कैंसिल. यहाँ पे बच्चे 4 3s are 25. प्रिंसिपल 10 is LCM, 10 plus 1. 25 is the LCM, 25 plus 3. 9856. अब बच्चे यहाँ पे कैलकुलेशन, प्रिंसिपल as like P as like 11 upon 10. P means principal. 28 upon 25 is 9856. Principal we have to find 9856. Linear equation 10 और 25 नीचे हैं, ऊपर चले जाएंगे. 11 and 28 डाउनवर्ड्स आ जाएंगे. कट करो बेटा. 28. ओके, मैं चेक करता हूँ कट हो रहा है कि नहीं. 11 8 88 105. यस, 11 के टेबल में बेटा कट हो रहा है. 8 88 105 9
6 सॉरी 66 आएगा ना, 28 के टेबल में बेटा ये कट होगा पूरा पूरा, 896 डिवाइडेड बाय 28 कितना आएगा, 896 डिवाइडेड बाय 28 32, 28 के टेबल में सीधा कट कर दिया 32. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 32 into 10, 32 into 10 into 25. 32 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 टू जा 50, 5 कैरी 75, 5 80, एक जीरो ये पड़ी है, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, ₹8,000. दिस इज द आंसर. अंडरस्टूड. हमारे 6 सम कंप्लीट हो चुके हैं बेटा. नाउ द 7th सम. 7th सम में क्या है हमारे पास, what principal will amount to ₹9856 in 2 years if the rate of interest for successive years. Okay. This is a 7th sum. 6th sum बच्चे में छोड़ गया. This is not the 7th sum, 6th sum. This is a 7th sum. 6th sum you have to try it yourself. Find the sum on which the compound interest simple है, 3 year at time बस. अभी 8th sum. On a certain sum, the compound interest in 2 years amount to this. If the rate of interest for successive year are 10 and 15% respectively. Find the sum. On a certain sum, the compound interest in 2 years amount to 4240. I have to check the answer. Now, 8th sum में बच्चे हमें compound interest given. Starting में लिखा है ना, on a certain sum, the compound interest in 2 years, time is 2 years, amount to, मतलब compound interest is this one, 4240. If the rate of interest for successive years, R1 is given 10% per annum and R2 is given 15% per annum. Find the sum. First of all, let principal be starting में ₹X. Amount principal plus compound interest. Amount की जगह इस साइड बेटा फॉर्मूला लिख देंगे 1 plus R1 over 100 की पावर 1, 1 plus R2 upon 100 की पावर 1. Principal is X plus compound interest 4240. Principal की जगह X, 1 plus rate 1 की वैल्यू 10 upon 100 power 1, 1 plus 15 upon 100 power 1 is X plus 4240. Cut these two, 0 से 0 cancel, 5 के टेबल पे 3, 20. X as like 10 is the LCM, 10 plus 1 power 1, 20 is the LCM, 20 plus 3 power 1 is X plus 4240. X 11 upon 10, 23 upon 20, X plus 4240. Up X into 11 into 23, 11 3 is 33, 3 carry, 22 3, 25. Upon 20 into 10, 200. X plus 4240 as like. Cross multiply, 253 को X से करेंगे बेटा 253X. 200 को दोनों से 200X plus 200 into 4240. X वाली टर्म एक साइड पे, सेम इस टाइप का सम बच्चे हमने पहले भी किया है. 200 into 4240 माइनस किया बेटा 53X, मल्टीप्लाई किया 4 to the 8, 2 to the 4, 4 to the 8, साथ में 3 zeros. X 848000, 53 इस साइड मल्टीप्लाई है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा. डिवाइड करो बेटा इसको, आई थिंक 53 के टेबल में कट होना चाहिए. 848 डिवाइडेड बाय 53. यस, 53 के टेबल में 848 आता है. कहां पे? 16 में, साथ में 3 zeros. X कितना आ गया? 16,000. Therefore, principal is ₹16,000 is the answer.
Now we have question number 9 now. At what rate we have to find? Per annum will rupees 6,000 amount to rupees 6,615. मतलब प्रिंसिपल है 6,000, 6,000 कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितने अमाउंट बन जाती है ₹6615. टाइम इज गिवन 2 years. अमाउंट की जगह बच्चे अमाउंट का फॉर्मूला 1 + r/100 की पावर t 6615. प्रिंसिपल इज गिवन 6,000. 1 plus rate as like 100 power t time 2 6615. रेट बच्चे फाइंड करना है तो ये ब्रैकेट इसका हम कुछ नहीं करेंगे, सेम टू सेम 6615 ओनली 6,000 सारे से मल्टीप्लाई था, वो कहां चला जाएगा नीचे 5 के टेबल में कट करो. 5 1 5, 5 3 15, 5 2 10, 5 3 50. नीचे 5 1 5 2 0 0. आई थिंक 3 3 6 3 के टेबल में कट हो रहा है बेटा. 400 3 4 12 12 1. आगे कट नहीं हो रहा, जितना यहां पे कट हो सकता है कट करना है. अब एक चीज का ध्यान रखना, आर फाइंड करना है ना, तो ये एक ब्रैकेट में है, पावर इसकी 2 है, तो राइट हैंड साइड में कोई ऐसा नंबर बनेगा ऑटोमेटिकली कट करने के बाद कि जिसकी पावर 2 आएगी. अब 441 किसका स्क्वायर है 21 का, 400 किसका स्क्वायर है 20 का, पावर 2. दोनों साइड्स को कंपेयर करो, बीच में इक्वल साइन है, आप एक लाइन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर किया. देखो पावर सेम तो बेस भी क्या होगा इक्वल होगा, बिकॉज इक्वल साइन इज देयर. ये लाइन लिखनी है जरूर, कंपेयरिंग बोथ साइड्स. तो 1 + r/100 इसके इक्वल 21/20. r/100 एज लाइक 21/20. 1 इस साइड आके माइनस हो गया. r/100 20 is the LCM, 21 - 20. r/100 is 1/20 and r 100 बेटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 20. कट किया 5. एक चीज का ध्यान रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 5% पर एनम, ये चीज लिखनी भूलनी नहीं है. दिस आंसर बस रेट फाइंड करना है, ये ध्यान रखना. जितनी पावर इस ब्रैकेट की आएगी उतनी पावर इस साइड कोई ऐसा नंबर आएगा कट करने के बाद, लोएस्ट टर्म में करने के बाद, पहले नहीं आ सकता, लोएस्ट में कन्वर्ट करने के बाद, उसके बाद कंपेयरिंग बोथ साइड करना. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. At what rate % compound interest does a sum of money become 1.44 times of itself in 2 years? Let इस सम में बच्चे क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को x ले लो. क्या लिखा है at what rate, rate we have to find, क्वेश्चन मार्क डाल दिया मैंने. Does a sum of money become 1.44 times, मतलब that is the amount 1 rupee 1.44x itself in 2 years. Time is given 2 years. अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट मतलब कितनी 1.44x है ना, अमाउंट की जगह अमाउंट का फॉर्मूला 1 + r/100 की पावर t 1.44x. प्रिंसिपल की वैल्यू x है बेटा. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है, सेम पावर t 2 1.44x. अब ब्रैकेट है जो r हमें पता नहीं है, पता तो हमें प्रिंसिपल भी नहीं है, बट x से x कट हो जाएगा. कैसे कट होगा ये देखो, 1.44x, x मल्टीप्लाई था कहां चला गया नीचे, x से x कैंसिल. 1 + r/100 की पावर 2, इस साइड में डेसिमल हटा लो, 144/100 कट कर लो. 4 के टेबल पे कट हो रहा है, 4 4 16, 4 3 12, 24, 4 6 24, यहाँ पे 25. कितना आ गया बेटा हमारे पास, 1 + r/100 की पावर 2
इज इक्वल टू 6/5 का स्क्वायर. कंपेयरिंग बोथ साइड्स. नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर करो. व्हाट वी गेट? बेस पावर इज सेम. सेम आएगी ही आएगी इस टाइप के सम. नहीं आएगी तो मींस यू आर रॉन्ग. पावर सेम है. कंपेयरिंग ये लाइन जरूर लिखनी है बेटा. इसके इक्वल 6/5. R/100 6/5 -1. R/100, 5 is the LCM. 6 minus 5. R/100 is 1/5, and R we get 1/5 into 100, and R we get 20% per annum. P dot A डालना मत भूलना, चाहे तो per annum पूरा लिख दो या P dot A. This is question number 10. Now we have question number 11. At what rate percent will amount sum of rupees 4,000 yield rupee 1324 as compound interest? Principal is rupee 4,000. Yield compound interest is given, that is rupee 1324. Time 3 years. Rate we have to find. First of all, we have to find the amount. Principal plus compound interest. Amount का formula P 1 plus R/100. This is also the formula for amount when principal and compound interest are given. Power T, principal 4,000, compound interest 1324. Principal 4,000. Rate we have to find. Power 3. इस साइड बेटा ऐड किया 5324. 1 plus R/100 की पावर 3 as like 5324 upon 4,000. कट करो बेटा. 4 के टेबल में कट हो रहा है. नीचे 1000, 4,000, 1000 into 4, 4,000. 4 1s are 4, 13. 4 3s are 3. 4 3s are 12. 4 3s are 12. 1. 1 3 3 1 upon 1000. ये आ गया. अब आगे कट नहीं हो रहा, बट इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में पावर कितनी है? 3. तो 1331 किसका क्यूब है? 11 का. ये पता होना चाहिए बेटा. पावर 3. कंपेयरिंग बोथ साइड्स. कंपेयरिंग बोथ साइड्स. दोनों साइड्स को क्या कर दो? कंपेयर कर दो. व्हाट वी गेट? what we have to find? Base power same, so base is also same. 1 plus R/100 is equal to 11/10. R/100 as like 11/10 minus 1. पहले 1 उस साइड जाके माइनस होगा. R/100 as like 10 is the LCM. 11 minus 10. R/100 is 1/10. R बच्चे फाइंड करना है. 100 ऊपर चला गया अपॉन 10. 0 से 0 कैंसल. 10%. Therefore, rate of interest is 10% per annum. This is the answer. This is the question number 11. सेम था बच्चे, बस कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन था तो पहले अमाउंट प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट करना. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12. 12th question. A person invests, not invites, rupee 5,000 for 3 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of 2 years, this sum amount to rupee this. Calculate the rate of interest per annum. Here, principal is rupee 5,000. Amount in 2 years. ये given है हमें. कितनी? 6,272. Calculate the rate of interest. Amount का फॉर्मूला बचे P 1 plus R/100 की पावर T 6272. स्टार्टिंग में लिख दिया 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया है, बट अमाउंट हमें किसकी दे दी? 2 ईयर की.
तो प्रिंसिपल 5000, 1 प्लस रेट ओवर 100 की पावर 2 आएगी, क्योंकि अमाउंट ये कितने टाइम की है, 2 इयर्स की है। 6272, 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर 2 एज लाइक 6272, 5000 कहां चला जाएगा, नीचे। 4 के टेबल में कट हो रहे हैं दोनों, 4 1 जा 4, 2 8 5 0, यहाँ पे बचे 4 1 जा 4, 22, 5 4 जा 20, 27, 8 3 जा 24, 8। फिर 2 के टेबल पे 6 2 5, 2 के टेबल पे 7 2 जा 14, 9 4। I think I can do some mistake. 22, 5 4 जा 27, 6 4 जा 6 आना था बेटा यहाँ पे, 4 7 2 जा 14, 4 4 जा 16, 4। अभी भी मिस्टेक है, still I have done any mistake. 4 1 जा 4, okay, 22, 5 4 जा 20, 27, 6 4 जा 24, 32, 8। फिर 2 के टेबल में कट किया, 7 2 जा 14, 8 आएगा बेटा यहाँ पे, 784। ये आगे कट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो कई बार जल्दबाजी में बच्चे मिस्टेक हो जाती है कटिंग में। 784 किसका स्क्वायर है, 28 का। 625 25 का। पावर लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, तो राइट हैंड साइड में भी पावर 2 बनेगी ही बनेगी। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर करो। व्हाट वी गेट, 1 प्लस r over 100 is 28/5. Power is same, then bases are also same. r over 100, 28/25 minus 1. r over 100, 25 is the LCM, 28 minus 25. r upon 100 as like 3/25, and r is 3/25 into 100. कट किया 4, r की वैल्यू कितनी आ गई, 12, और परसेंट पर एनम मत डालना, मत भूलना। तो पहला आंसर हमारा आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था। अमाउंट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। नाउ अमाउंट फॉर 3 इयर्स या 3rd ईयर के एंड पे अमाउंट। प्रिंसिपल 1 प्लस r over 100 की पावर t। प्रिंसिपल स्टार्टिंग में 5000 था, सेम। 1 प्लस रेट हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 12 अपॉन 100 टाइम 3 years. Now you have to calculate this one and get the amount for 3rd year, that is a second. This one you have to do it yourself. Calculation है और कुछ नहीं है, फॉर्मूला तुम्हें बता दिया, रेट फाइंड किया था वो फिल करना है and get the answer. 13th, जैसे बच्चे रेट फाइंड करने वाले आए थे, अब टाइम फाइंड करने वाले। In how many years time we have to find? Will rupee 7,000, principal is rupee 7,000. Amount 2, amount कितनी, rupee 9317 at rate of interest 10% per annum, compound interest. अमाउंट जो है वो लिख लो बेटा 9317। अमाउंट की जगह अमाउंट का फॉर्मूला p 1 प्लस r over 100 पावर t 9317। सेम प्रिंसिपल 7000, 1 प्लस रेट 10 अपॉन 100 की पावर t, क्योंकि टाइम तो हमने फाइंड करना है, 9317। सेम मेथड, यहां से बेटा जीरो कैंसिल करना है, यहाँ पे 100 नहीं रखना, नीचे कट हो रहा है तो कट करना है। 10 एलसीएम आ जाएगा, 10 + 1 11 आ जाएगा। पावर टी जो ये 7000 था वो इस साइड जाके नीचे चला गया। अब जैसे पहले था पावर सेम आती थी लेफ्ट और राइट की, अब बेस सेम आएंगे, मतलब ये कट होके कुछ ऐसा बनेगा कि वो 11 और 10 की पावर बनेगा। 7 के टेबल पे सीधा काट दो, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 1331 नीचे 1000, आगे कट नहीं होते। कितना आ गया, 1331 अपॉन 1000 आ गया। अब 1331 किसका क्यूब है, मतलब हम पावर 2 भी हो सकती है इसकी, पावर 4 भी हो सकती है, पावर कुछ भी आ सकती है, बट नाउ बेस बिकम सेम, बेस सेम आएंगे ही आएंगे।
पावर 3, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर करो, बेस सेम है, पावर भी सेम आ जाएगी। 3 years, दैट इज द टाइम। टाइम क्या आ गया हमारे पास? 3 years आ गया। 14 sum, find the time in which rupee 4,000, principal is 4,000, will produce 630.50 as compound interest, rupee 630.50, rate of interest 5% per annum, being compounded annually, amount P plus CI, principal 4,000, compound interest 630.50, दोनों को ऐड करो 4630.5, amount principal 1 plus R over 100 की power T, principal is 4,000, rate 5 upon 100, time we have to calculate 4630.5. इसको कट करना ही करना है, नहीं कट करोगे तो रॉन्ग है, वहां पे हमारा आंसर नहीं आएगा। फिर एलसीएम ले लिया बेटा, 1 और 20 का एलसीएम 20, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 20, 21 जा 21, सॉरी 20, 1 1 जा 1, और 46305 डेसिमल हटा दिया, डेसिमल के बाद 1 डिजिट था, नीचे 10 आ गया, 4000 कहां चला गया? नीचे चला गया। कट दीज टू 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 13 5 2 जा 10, 6 1। इस साइड क्या बन गया? ये आगे कट नहीं हो रहा, यहाँ 21/20 की पावर टी आएगा। इस साइड ये किसका क्यूब है? नीचे 8000 बनेगा, 9261/8000 आ गया ना। 8000 बेटा 20 का क्यूब है। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 years, that is the answer. You have to do it now. This is the question number 14. Question number 15, that is different one. Divide rupee 28,730, total money कितनी है? rupee 28,730 between A and B when their shares are lent out at 10% compound interest compounded per year. The amount A receive in 3 years is same as the what B receive in 5 years. A, B. A का प्रिंसिपल बच्चे X, मान लो A ने X रुपीज मिले, इसमें से टोटल में से, तो B को कितने मिलेंगे? इसको P1 लिखो, इसको P2 या PA लिख दो, तुम्हारे पे डिपेंड है। कितना आएगा बेटा? टोटल मनी इसको डिवाइड करना है ना, इसको X रुपीज दे दिए तो उसको कितने देंगे? 28730 minus X. This is the principle of this one. Rate of interest सेम है दोनों का, that is 10%. तो R ही लिख दो, R1 R2 लिखने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल डिफरेंट था इसलिए वहां P1 एंड P2 मेंशन किया। द अमाउंट A receive in 3 years, यहाँ टाइम 3 year है, और यहाँ पे टाइम कितना है? B receive in 5 years, B ने 5 year में रिसीव किया। Here amount PX 1 plus rate 10/100 की पावर 3, और B ने कितनी अमाउंट रिसीव की? A1 A2 ही लिख दो, यहाँ पे T1 T2 ही लिख दो, टाइम डिफरेंट है, अमाउंट भी डिफरेंट। प्रिंसिपल फॉर्मूला नहीं बेटा, मैंने इस टाइम लिखा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट 10/100 की पावर 5। नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड, द अमाउंट A receive in 3 years is the same, जितनी इसने 3 ईयर में ये अमाउंट रिसीव की, इसने 5 ईयर में इतनी अमाउंट रिसीव की, दोनों इक्वल है। नाउ X 1 plus 10/100 की पावर 3, 28730 माइनस X, यहाँ पे बच्चे 1 plus 10/100 की पावर 5, सेम, ये बेटा कट हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। X एज लाइक, क्योंकि इसको नीचे लेके जाएंगे तो पावर 2 रह जाएगी ना, मल्टीप्लाई साइन इज देयर,
28730 minus x as like, यहाँ पे बच्चे कट कर दो 11/10 एलसीएम लेके ये आ जाए. ओके, x इज 28730, कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है. 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 10 का स्क्वायर 100. 100 उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100x. इसको बच्चे इससे मल्टीप्लाई करो 28730 इंटू 121 माइनस 121x. x वाली टर्म्स एक साइड पे, इसको मैंने जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे कटिंग करनी इजी हो जाएगी. प्लस 121 x किसके इक्वल 28730 इंटू 121 को ऐसे ही रखो. मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर लो, बट टाइम वेस्ट ही होगा उससे. दोनों को ऐड किया 221x, इन दोनों को ऐसे के सेम टू सेम रख दिया 221. नाउ कैलकुलेट. बच्चे मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो. 730 डिवाइडेड बाय 221. ये पूरा पूरा कट हो रहा है इस पे, कहां पे 130 पे. ये सॉरी यहाँ पे बच्चे 221 में ऑलरेडी ले चुका हूं नीचे x. 121 130 को 121 से मल्टीप्लाई करो. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15,730. अब फाइंड क्या करना था क्वेश्चन नंबर 15 में, डिवाइड करना है. तो ए शेयर, ए का शेयर कितना है x है, दैट इज रुपी दिस वन. और बी का शेयर कितना था 28730, स्टार्टिंग में माइनस x था ना, मींस 28,730 में से 15,730 माइनस करो. 0 0 0 8 में से 5 गए 3, 13,000. दैट इज अ बी शेयर. This is the total answer. Now we have question number 16. A sum of rupee 44,200 is divided between John and Smith, 12-year and 14-year-old respectively. John की एज 12 है, Smith की एज 14 है. In such a way that if their portion be invested at 10% per annum compound interest, they will receive equal amount on reaching 16 years of age. John and Smith. Present age इसकी कितनी है 14 years. इसकी प्रेजेंट एज कितनी है, सॉरी इसकी 12 ईयर थी, इसकी 14 ईयर है. इन हाउ मच टाइम जॉन रीचेज एट द एज ऑफ 16? 4 ईयर बेटा. 12 का है, 16 कितने टाइम में होगा 4 ईयर में, और ये 2 ईयर में. 14 ऑलरेडी इसकी एज है, 16 ईयर का कब होगा 2 ईयर्स में होगा. अब टोटल मनी कितनी है, टोटल मनी इन्वेस्टेड दोनों का टोटल 44,200. इसका प्रिंसिपल बच्चे P1 एक्स लेट कर लो रुपी एक्स, तो इसका प्रिंसिपल कितना आएगा रुपी 44. टोटल में से जितनी मनी उसने इन्वेस्ट की. रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है कितना 10% पर एनम. बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन बन गया लास्ट टाइम वाला. अब क्या लिखा है इक्वल अमाउंट. इसने मतलब 4th ईयर में, सीधा उन्होंने नहीं लिखा, घुमा के लिख दिया कि जब जॉन की एज 16 ईयर होगी, अटेन करेगा 16 ईयर, मतलब कितने टाइम में 4 ईयर में. ये स्मिथ 14 से 16 कितने टाइम में होगा 2 ईयर में. जो इसकी अमाउंट आएगी और इसकी अमाउंट आएगी सेम एज लाइक क्वेश्चन नंबर 15. नाउ डू इट योरसेल्फ. 17 sum. The simple interest on a sum of money. Now simple interest is given at the rate of 10% per annum is 6,000. Simple interest कितना दिया है 6,000. कितने टाइम में 2 ईयर में. Find the principal. Now simple interest 6,000. Simple interest का फॉर्मूला P into R into T upon 100. 6,000. Principal 6,000 है बेटा. Oh sorry. Principal is not given. Principal we have to find. Rate 10 time 2 upon 100 is 6,000. Principal 6,000
इंटू 100, 10 and 2 नीचे चले गए, 0 से 0 कैंसल, 5, 6 5 30, 3 0 साथ में, प्रिंसिपल ये आ गया, फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड, द अमाउंट ड्यू टू एंड ऑफ 3 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। नाउ जो यहां से प्रिंसिपल आया है उस प्रिंसिपल पे, मतलब प्रिंसिपल वुड शुड रिमेन द सेम, कितने टाइम के लिए, 3 year के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आल्सो सेम, 10% पर एनम। यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट, फॉर्मूला पता है, P 1 + R/100 की पावर T, प्रिंसिपल 30,000 यूज करना है, rate time 3 year, rate 10%, you can calculate. And third part, the compound interest earned in, अब compound interest जो ये अमाउंट आ जाएगी उसमें से प्रिंसिपल 30,000 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ बहुत से सम कर लिए बेटा हमने, नाउ यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ, नहीं आएगा तो डाउट पूछ लेना। नाउ द लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 18, find the difference between compound interest and simple interest on rupee 8,000, time 2 year, rate 5% per annum, amount P compounded annually, power T, and simple interest फॉर्मूला पता होना चाहिए, P into R into T upon 100. Amount we have to calculate, principal is 8,000, one, rate of interest is 5 upon 100, time is 2. Here simple interest, चलो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, उसको बाद में करेंगे। कट होके 1/20 आ गया, 8,000, 20 is LCM, 20 + 1 21 आ जाएगा, पावर 2, इसको कैलकुलेट करो बेटा, 8,000 into 21/20 into 21/20, 0 0 कैंसल, 40, 2 पे कट किया 20, 21 स्क्वायर 441 into 20, 2880. This is the amount, this is our work. फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट इज 8820 minus principal is 8,000. What we get? Compound interest we get 820. Same way बेटा सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला लिख दिया था, प्रिंसिपल 8,000 ही यूज करना है, रेट 5 है, टाइम 2 है, अपॉन 100, जीरोस कैंसल, 8 5 42 are 80, 800. Simple interest we get 800. Now we have to find the difference between compound interest and simple interest. एक चीज का ध्यान रखना, कंपाउंड जो कंपाउंड इंटरेस्ट है सेम रेट सेम टाइम में हमेशा ज्यादा आएगा, 820 है, माइनस सिंपल इंटरेस्ट बच्चे हमने 800 कैलकुलेट किया है, दोनों को माइनस किया, व्हाट वी गेट, ₹20 इज द आंसर। ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। तो हमारा एक्सरसाइज 3A is completed now. Anyone having doubt, he or she can contact me on my WhatsApp number 7009 509669. I can try my best to solve the doubt if I am not busy. Okay? और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने क्लासमेट्स, मतलब सबका फायदा हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।